Hello and welcome. This is the second part of the chapter Democratic Resurgence, and in this part, we are going to talk about two more socialist philosophers, political activists of India, Ram Manohar Lohia ji and Deen Dayal Upadhyay ji. Okay, so and both of these thinkers they hold a very important place in Indian politics, and their thinking became the basis of democratic resurgence that we see in the decade of 70s and 80s. Okay, so let's study that how it happened. Now about Ram Manohar Lohia ji, he was a socialist leader, a socialist thinker, a freedom fighter, and among the founders of the Congress Socialist Party. Okay, so if you remember, this Congress Socialist Party was formed within the folds of the Congress. So the leftist ideology of the Congress, the people who were very much influenced by the Marxist ideology at that time, they formed a socialist party within Congress. One of the members of this Congress Socialist Party was Jayaprakash Narayan also, about whom you have studied in the previous video. I told about Jayaprakash Narayan in the previous video of this chapter. So Ram Manohar Lohia ji was among the founding members of the Congress Socialist Party, but this Congress Socialist Party is split, and then he became the leader of the Socialist Party, that also split, and then Sanyukta Socialist Party. Okay, so mainly he was a socialist. But if you see socialist thinking in India, among the Indian thinkers, if you see the socialist thinking, there are a little variations. Okay, so you have seen the socialism that Jayaprakash Narayan advocated. Now this was a socialism. Here you are seeing what socialism meant for Ram Manohar Lohia, and then in the same video you'll see a slight variation of it, and that will be Deen Dayal Upadhyay's. Okay, so he was a member of Lok Sabha from 1963 to 1967. He was the editor of Mankind, and he is known for his original contribution to a non-European socialist theory. So, if you see the socialist theory, Marxist theory, it originated in USSR, became the biggest laboratory of socialism, you can say. Okay, so Ram Manohar Lohia wanted to devise a socialist theory that suited to Indian conditions. Okay, any politics, it is successful when it suits to the people and that country in particular. So socialism originated in USSR. The socialist revolution first happened in USSR, and that kind of socialist revolution suited that country because in that country there was a majority of the laborers. तो इनका ये मानना था राम मनोहर लोहिया जी का कि हमारे यहाँ लेबर क्लास जो थी उतनी पावरफुल नहीं थी उस टाइम. जो क्लास थी वो थी हमारे यहाँ फार्मर्स की और पीजेंट्स की क्लास. तो वो सोशलिस्ट थ्योरी हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमारी कंडीशंस को सूट नहीं करती है, इसलिए excuse me, he stressed on a non-European socialist theory. Okay, political leader में he was a very sharp critic of जवाहरलाल नेहरू. बहुत शार्प क्रिटिक थे जवाहरलाल नेहरू के. लेकिन जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि उस समय जो लीडर्स थे उनके लिए एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत था. तो ऐसा नहीं कि वो नेहरू के क्रिटिक थे तो उस लेवल पे डीजेनरेट होकर डिबेट्स होती थी जिस लेवल पे आज होती हैं. सम्मान एक दूसरे के लिए बराबर बना रहता था. जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, 1962 में जो सेकंड इलेक्शंस था इंडिया का, वो राम मनोहर लोहिया जी ने सीधे नेहरू के अगेंस्ट लड़ा था. तो नेहरू इलेक्शन लड़ते थे फूलपुर से. फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी, फूलपुर एक जगह का नाम है, ये इलाहाबाद के पास आती है. तो फूलपुर से नेहरू इलेक्शन लड़ते थे और वहीं से लोहिया भी खड़े हुए इलेक्शन में. नेहरू जी ने ये कहा था कि अब नेहरू को किसी कैनवसिंग की ज़रूरत नहीं थी, उनको किसी प्रोपागेंडा की ज़रूरत नहीं थी. तो नेहरू ने ये कहा था कि मैं इलेक्शन में कैनवसिंग करने के लिए नहीं आऊँगा. लेकिन लोहिया जी का जब जोर पकड़ने लगा फूलपुर में, देन नेहरू मजबूर होके ये आए, फूलपुर आए और इन्होंने कैनवसिंग करनी शुरू की. तो ऐसा कहा जाता है कि दिन भर ये लोग रैलीज करते थे, मीटिंग्स करते थे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते थे, एक दूसरे की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते थे, आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते थे और शाम को एक साथ बैठ के चाय पीते थे.
देखिए ऐसा आज के ज़माने में, आज इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांस यू कैन नॉट इवन थिंक अबाउट इट दैट द टू ऑपोजिट लीडर्स हु आर फाइटिंग इलेक्शंस अगेंस्ट ईच अदर, वो एक दूसरे के साथ शाम को बैठ के चाय पियेंगे। तो ये 1962 में इन्होंने इलेक्शन लड़ा था नेहरू के अगेंस्ट फूलपुर से, मगर ये हार गए थे उस इलेक्शन में। और फिर 1963 में कहीं और से बाई इलेक्शन लड़के ये लोकसभा के मेंबर बने थे। 1967 तक ये लोकसभा के मेंबर थे एंड 67 में इनकी डेथ हो गई थी। ओके, ही एडवोकेटेड रिजर्वेशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट एंड ही वाज अपोज टू इंग्लिश। बहुत बुरी तरीके से इन्होंने इंग्लिश का जो प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है, दैट इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश शुड नॉट बिकम अ क्लास इन इंडिया, ये इनका मानना था। और इनका कहना भी था कि अगर हम लोग इस टेंडेंसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करेंगे देन इंग्लिश विल बिकम अ क्लास इन इंडिया, विच हैज़ हैपेंड नाउ। नाउ इंग्लिश इज अ स्टेटस सिंबल। इफ यू डोंट नो टू स्पीक इन इंग्लिश, फाइन इंग्लिश, देन आपके साथ किस तरह का बिहेवियर, वो हम सब ने उसको महसूस भी किया है, झेला भी है और उसके विक्टिम भी हुए हैं। तो ये जो है, ये उन्होंने उसी वक्त कहा था लोहिया ने कि हमें अपनी मातृभाषा पे ज़्यादा जोर देना चाहिए और इंग्लिश को सिर्फ एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन की तरह से देखना चाहिए, स्टेटस सिंबल की तरह से नहीं। राम मनोहर लोहिया जी, जो इन्होंने इनकी फिलॉसफी थी, जो आइडियोलॉजी थी, ही चैंपियन द आइडिया ऑफ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अब बड़ा एक यहाँ इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप नेहरू की आइडियोलॉजी को देखेंगे तो वो भी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही है, उसको भी हम लोग डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ही कहते हैं। बट बोथ वो क्रिटिक्स ऑफ ईच अदर, दोनों की एकदम कहीं पे भी बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म एक दूसरे को करते थे, क्रिटिसाइज करते थे। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है। अगर सोशलिज्म आप एज सच देखें तो सोशलिज्म एक वो आइडियोलॉजी है जो ये कहती है द चेंज थ्रू रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन से चेंज आएगा। ठीक है, इनका ये मानना है कि डेमोक्रेसी के थ्रू चेंज आएगा, डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू चेंज आएगा, पावर जो है वो लोगों के हाथ में जाएगी। ठीक है, तो ये एक दूसरा ही वेरिएशन हुआ सोशलिज्म का, विच इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। एंड दिस डेमोक्रेटिक सोशलिज्म स्ट्रेस ऑन गिविंग नॉट ओनली पॉलिटिकल फ्रीडम बट ऑल्सो इकोनॉमिक फ्रीडम, economic objective in the form of food and housing and the non-economic objective in form of democracy and freedom। तो ये मानना था कि जब तक इकोनॉमिक फ्रीडम लोगों के पास नहीं है, पॉलिटिकल फ्रीडम इज नल एंड वॉइड। ये हमेशा इंडिया के सोशलिस्ट ने इस बात पे स्ट्रेस किया दैट अनलेस एंड अनटिल देयर विल बी इकोनॉमिक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी इज अ फार्स। कि पॉलिटिकली आप किसी को कितना भी राइट टू वोट दे दीजिए, लेकिन अगर वो इकोनॉमिकली फ्री नहीं है, वो अपने डिसीजन कि उसको किसको वोट देना है इस दबाव में आकर ले रहा है कि कहाँ पे उसका इकोनॉमिक फायदा है, तो फ्रीडम कहाँ है? फ्रीडम है ही नहीं। तो इस तरह की बातें इन्होंने कही और इस बात पे स्ट्रेस दिया कि इकोनॉमिक फ्रीडम होनी चाहिए, फूड एंड हाउसिंग शुड बी अवेलेबल टू एवरीवन। देन ही टॉक्ड ऑफ चौबुर्ज राजनीति। चौबुर्ज राजनीति का इंग्लिश मतलब हुआ 4 पिलर्ड पॉलिटिक्स। Okay, so there are 4 pillars of politics, and these 4 pillars of politics and socialism are center, region, district, village। तो देखिए कुछ सिमिलैरिटी आपको देखिए जेपी के थॉट से, इनके थॉट में उन्होंने भी 3 चीज़ों की बात की थी और उस तरह से कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की थी। इन्होंने भी 4 पिलर्स बताए राजनीति के, सेंटर, रीजन, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, और इनमें जो कोऑपरेशन है, जो लिंक है, वो इस्टेब्लिश करेगा डेमोक्रेसी को। ठीक है, देन ही टॉक्ड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन। अफर्मेटिव एक्शन मीन्स वो स्पेशल पॉलिसीज दैट लीड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द डाउन ट्रोडन। Okay, so he talked of reservations, and reservation not only to the scheduled caste or scheduled tribes। so scheduled caste और scheduled tribe को reservation था, वो constitution ने दे दिया था। so he talked of reservation not only to scheduled caste and scheduled tribes but also to women and non-religious minorities। okay, so he talked of affirmative actions to uplift the condition of these downtrodden class। उसके बाद फिर इस चौबुर्ज राजनीति, ऑन द बेसिस ऑफ दिस चौबुर्ज राजनीति एंड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, ही टॉक्ड ऑफ ए पार्टी ऑफ सोशलिज्म, कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मर्ज करके एक पार्टी ऑफ सोशलिज्म बने और उसके थ्रू पॉलिटिक्स की जाए। और इस जो पार्टी ऑफ सोशलिज्म है, देयर विल बी 3 सिंबल्स ऑफ दिस पार्टी ऑफ सोशलिज्म। वन विल बी स्पेड, which means prepare to make efforts, vote, power of voting, democratic power, and prison means symbolizes sacrifice, कि आप मेहनत करने को तैयार हैं, आप sacrifice देने को तैयार हैं
और जब आप मेहनत करेंगे और सेक्रीफाइस करेंगे तो अपने आप ही आपके पास वो फ्रीडम आ जाएगी दैट यू वांट, दैट इज वोट, पावर ऑफ वोटिंग. सो दिस वाज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म इन वेरी शॉर्ट, वेरी नटशेल ऑफ राम मनोहर लोहिया जी. इनके ऊपर लोगों ने रिसर्चेस करके रखी हुई हैं, बहुत से रिसर्चेस हो चुकी हैं राम मनोहर लोहिया जी की आइडियोलॉजी पे. तो ये तो मतलब कुछ भी नहीं है, इट्स आपको बस एक इंटू दिया गया है, आपके लिए एक विंडो खोली गई है कि आप उसमें और रिसर्च करिए, पढ़िए राम मनोहर लोहिया जी के बारे में. उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जो थे, ये आरएसएस भी भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी तीनों से एसोसिएटेड थे. तो ये आरएसएस के मेंबर थे. अगर आपको तीनों में कनेक्शन नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ. नाउ द भारतीय जनसंघ इज द पॉलिटिकल, वाज कंस्ट्रूड टू बी द पॉलिटिकल विंग ऑफ आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या है? ये हिंदुत्व आइडियोलॉजी पे बेस उसको प्रोपगेट करता हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन है. ठीक है. इस ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिटिकल विंग थी, जो बनाई गई थी, वो थी भारतीय जनसंघ. ठीक है. और भारतीय जनसंघ से उदय होता है भारतीय जनता पार्टी का. सो भारतीय जनता पार्टी पेरेंट पार्टी इज बीजेएस, इज भारतीय जनसंघ. ओके. सो भारतीय जनता पार्टी की पेरेंट पार्टी ये है और इनकी पेरेंट पार्टी, इनका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया? आरएसएस हो गया. ओके. तो so he was the member of RSS, then he was a leader of Bharatiya Jansangh, and then he became the Bharatiya Jansangh, which became the forerunner of Bharatiya Janata Party. ठीक है. अब इनकी जो आइडियोलॉजी थी, ये मंथली पब्लिकेशन करते थे राष्ट्र धर्म का 1940s. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनसंघ फ्रॉम 1967 टू 1968. एक साल से भी कम के लिए प्रेसिडेंट रहे भारतीय जनसंघ के लिए. लोकसभा इलेक्शन ही कंटेस्टेड इन 1963 बट ही लॉस्ट. और 1968 में ही डाइड अंडर मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस. इनकी डेथ बड़ी मिस्टीरियस रही और उसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस भी हुई, जांच की गई कि किस तरह से इनकी डेथ हुई, लेकिन कुछ क्लियर सामने आया नहीं. तो इनकी जो डेड बॉडी मिली थी वो मुगल सराय जंक्शन, ये वाराणसी के पास है मुगल सराय जंक्शन. और मुगल सराय जंक्शन पे जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन पे ही के बस प्लेटफॉर्म के थोड़ी दूर इनकी बॉडी मिली थी. और उसके बाद फिर काफ़ी जांच हुई तो बस सिंपल ये चीज़ सामने आई कि जो बर्गलर्स थे उन्होंने शायद उनका मर्डर कर दिया. खैर जो भी हो उसमें अब तो कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में. सो 50 years आफ्टर हिज डेथ द रेलवे स्टेशन वाज नेम्ड आफ्टर हिम. इट इज कॉल्ड नाउ द दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन. जो मुगल सराय रेलवे स्टेशन है उसका नाम रख दिया गया दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन. काफ़ी मॉन्यूमेंट्स और काफ़ी आपको हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और इस तरह की चीज़ें आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से मिल जाएंगी. तो ही वॉज अ फिलोसोफर, सोशोलॉजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, पॉलिटिशियन. जो इनकी फिलॉसफी है उसका नाम है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म. देखिए बेसिक बात समझिए, जो भारतीय जनसंघ है वो आरएसएस का पॉलिटिकल विंग था. ओके. तो इसको एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में लिया जाने लगा था और इससे मतलब इसकी उतनी एक्सेप्टेबिलिटी मासेस में नहीं हो रही थी. तो दीनदयाल उपाध्याय की ये जो फिलॉसफी है, ये इंटेग्रल ह्यूमनिज्म की, ये फिलॉसफी भारतीय जनसंघ को की एक्सेप्टेबिलिटी हो मासेस में, वो करने का एक मीडियम बना इंटेग्रल ह्यूमनिज्म. तो यहाँ पे इन्होंने जो आरएसएस की आइडियोलॉजी है और जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसको समझ लीजिए, उसका एक मिश्रण है, उसको एक तरह से घोल के बनाया गया है इंटेग्रल ह्यूमनिज्म. Okay, so it is intended to present an indigenous socio-economic model in which human being remains at the center of development, ensures dignified life for every human being while balancing the needs of individual and society, supports sustainable consumption of natural resources. तो वो सारी चीज़ें इन्होंने सिर्फ मतलब इन्होंने जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी उसको ऐसे प्रेजेंट किया that there has to be a pure soul. ठीक है. और वो जो प्योर सोल में है उसमें सैक्रिफाइस भी हो
उसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू धर्म ही मानने वाले जो हैं वही सबसे अच्छे हैं। इसका मतलब ये है कि जिस तरह से भी आप you become a pure human being. Okay, so integral humanism enhances not only political but also economic and social democracy and freedom. ये बात करते हैं कि आप प्रकृति से आप रिसोर्सेज उतने ही लीजिए जितनी की आपको ज़रूरत है, बाकी छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, कि आप प्रकृति से बोरो फ्रॉम नेचर एंड देन रिटर्न इट। ओके, उसके बाद इट टॉक्स अबाउट ईच इंडिविजुअल सोल, कि हर इंडिविजुअल सोल जो है वो अपने आप में सुप्रीम है। ओके, तो सबकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है। अब आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, सोल तो सब में है, सबकी इम्पोर्टेंस है। अगर नेक्स्ट में देखिए तो 3 बेसिस हैं इंटेग्रल ह्यूमनिज्म के: प्रेमेसी ऑफ होल नॉट पार्ट, सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, ठीक है, और ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, कि जो संपूर्ण है उसकी इम्पोर्टेंस है। हम लोग सब लोग मिल के बनाते हैं संपूर्ण। ओके, तो उसकी इम्पोर्टेंस है। सुप्रीमेसी धर्म क्या होता है? धर्म यहाँ मतलब धर्म से ये है कि व्हाट इज योर ड्यूटी, दैट इज योर धर्म। देन ऑटोनॉमी ऑफ सोसाइटी, की क्योंकि इन सारे ह्यूमन बींग से बनकर पूरी सोसाइटी बन रही है, इसलिए जो सोसाइटी है वो ऑटोनॉमस होगी। ओके, so he opposed both western capitalist individualism and marxist socialism, इन दोनों को इन्होंने अपोज किया और इन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें बेकार है क्योंकि ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, see here, so they are based on materialistic purpose, whereas spiritual development is equally considered important for the complete development of human being, which is missing in both capitalism and socialism. तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों इंडियन कंडीशंस को सूट नहीं करता बिकॉज दे डोंट टॉक ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स, एंड थ्रू द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स वी विल बी एस्टैब्लिशिंग प्योर सोशलिस्टिक सोसाइटी। ये इनकी फिलॉसफी का सार था। Okay, his philosophy and internal conscious pure human to be called Chit, Deen Dayal Upadhyay envisaged a classless, casteless, conflict-free social system. Okay, so this is about these two thinkers in very much short about Pandit Deen Dayal Upadhyay and Ram Manohar Lohia जी, जिनके thoughts basis बने आपकी जितनी भी social revolutions आप देखते हैं, movements देखते हैं, जो politics में जो नए currents निकले 70s और 80s की politics में जो नए thoughts निकले और जिन्होंने कांग्रेस को चैलेंज किया, वो उन आइडियोलॉजी का बेस जो था वो इन थिंकर्स ने दिया था, जेपी दीनदयाल उपाध्याय एंड राम मनोहर लोहिया। ओके, मेरे ख्याल से आपको कुछ तो समझ में आया होगा, हालांकि ये बहुत ही कम है इन महान लोगों को समझने के लिए, इन पे बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, तब ये समझ में आने वाली चीज़ें हैं। So that's all for this video. I hope you're understanding the things. Please do like and comment on the video and share the video with your friends. Share the channel with your friends so that they also get benefited from it. Thank you for watching. Bye bye.